Can you see the screen? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Up till now, we have covered physical concentration methods, basic definitions present in the metallurgy, metallic part, that is mineral, gangue, or stages of extraction of metals, crushing, concentration, physical concentration method, gravity separation method, magnetic separation method, that is also known as electromagnetic separation method, Froth flotation method. Gravity separation method, it is adopted for the heavy metallic ore like hematite and stone, which is based on weighing characteristic. Heavy ore particles, they are collected in depressions, while lighter gangue particles goes along with the running stream of water. Second one is magnetic separation method. We can concentrate non-magnetic ore from magnetic impurities like tungstate of iron and manganese. Non-magnetic ore like tin stone, it can be separated out very easily from the magnetic impurities. If that ore, if it is associated with the magnetic impurities like tungstate of iron and manganese, in that case, we are adopting that method. Last one, Froth flotation method, which is again based on weighting characteristic, nothing but ore particles, they are weighted with the help of oil molecules, and gangue particles, impurities, are weighted with the help of water. Hence, after passing the compressed air, there is formation of froth and foam, and that formed froth, it floats over the water, and sulfide particles like zinc sulfide, nickel sulfide, zinc sulfide, it is also called as zinc blende, lead sulfide, also known as galena, copper pyrite, cinnabar, mercurous sulfide. Such sulfide ores can be concentrated with the help of this froth flotation method. In that container, we are taking a mixture of ore, water, and pine oil. It helps for development of froth in this case. Okay, and then the next part of this topic, chemical concentration method. Chemical concentration method, the impurities which are not removed by just physical concentration method, they can be concentrated with the help of chemical concentration method. The first method, it is adopted in the reverberatory furnace. See that this is the type of furnace, type of container in which we are placing the ore particles in the hearth area, the platform where we are placing the ore particles, powdered ore particles, and this powdered ore, it is heated with the help of reflected flame. Heated with the help of reflected flame. We can easily see the ash area, fire area, from which flames are coming out, and it strikes over the arc roof of furnace. And after striking that, flames are diverted towards right hand side, towards the hearth area, and in presence of oxygen or in absence of oxygen, we are heating the ore. The condition is minimum. We can say that this ore, it is heated in presence or in absence of air below the melting point of ore. यहाँ हम क्या कर रहे हैं, ये रिवर्बरेटरी फर्नेस एक ऐसा फर्नेस है, ऐसा कंटेनर है जिसके अंदर हम ओर पार्टिकल्स को हीट कर रहे हैं, ओर पार्टिकल्स को हीट कर रहे हैं। और हीट करने के बाद, हीट कैसे कर रहे हैं पहले ये देखते हैं। तो हीट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म के ऊपर हम ओर पार्टिकल्स कलेक्ट कर रहे हैं, और ये जो कंटेनर है रिवर्बरेटरी फर्नेस, उसके अंदर जो फ्लेम है, वो जो आर्क है, वो फर्नेस की जो आर्क, रूफ का आर्क है, उस रूफ के आर्क को स्ट्राइक होने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाते हैं फ्लेम्स, और रिफ्लेक्टेड फ्लेम्स क्या करते हैं,
और पार्टिकल्स को हीट करते हैं। रिफ्लेक्टेड फ्लेम्स क्या करते हैं, और पार्टिकल्स को हीट करते हैं। यानी हीट करने के बाद क्या हो रहा है कि और पार्टिकल्स हीट करने के बाद अलग अलग रिएक्शन के अंदर जाएगी और केमिकली वी कैन कॉन्सेंट्रेट दैट ओर। यानी अब तक जो फिजिकल कॉन्सेंट्रेशन मेथड में हम क्या कर रहे थे, अर्थी, रॉकी, अनवांटेड, यूजलेस, वैल्यूलेस इंप्योरिटी जो आसानी से हम निकाल सकते थे, सेपरेट आउट कर सकते थे, ऐसे आसानी से सेपरेट आउट करने वाली इंप्योरिटीज हम निकाल रहे थे। लेकिन अभी उस ओर के साथ में ऐसी इंप्योरिटीज मौजूद है जो कि फिजिकली कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाए। हम फिजिकली कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाए, उसको केमिकल कॉन्सेंट्रेट करने के लिए हम उसको रिवर्बरेटरी फर्नेस के अंदर डाल रहे हैं। रिवर्बरेटरी फर्नेस के अंदर फर्नेस के डोर्स रहते हैं और कभी हम डोर्स क्लोज करके और पार्टिकल्स को हीट करते हैं, कभी डोर को ओपन करके और पार्टिकल्स को हीट करते हैं और कभी क्लोज करके हीट करते हैं। यानी दोनों वक्त अलग अलग रिएक्शंस वहां पे प्रोड्यूस होती है। देखिए हम डायरेक्टली हीटिंग नहीं कर रहे, डायरेक्टली हीटिंग करेंगे तो मेटेलिक और पार्टिकल्स जो है मेल्ट भी हो सकती है। उसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ हमें उस टेम्परेचर तक हीट करते हुए जाना है जहां पे उसका मेल्टिंग पॉइंट है। सपोज 1089 it is the melting point of copper. We are heating that ore below 1089 degrees Celsius, nothing but up to 1000 degrees Celsius we are heating that ore. यानी हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सी ओर हम सेलेक्ट कर रहे हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उस हिसाब से हम उसको उस ओर पार्टिकल को हीट कर रहे हैं। टॉपर पार्ट में हुड है, फनेल जैसा शेप वाला एक हुड बनाया है, वहां से और पार्टिकल इंसर्ट कर रहे हैं। और राइट हैंड साइड में गैसेस रिलीज करने के लिए एक सेक्शन है। हमेशा इसके लिए एक डोर भी रहेगा और जब हम चाहेंगे तभी उस गैसेस को हमें वो रिलीज करना है। हर वक्त वो ओपन नहीं रहेगा। हर वक्त गैसेस का जो कंटेनर ओपनिंग दिखाई दे रहा है, वहां पे एक दरवाजा रहेगा, ओपनिंग रहेगी, नॉब रहेगा जो कि हम अपने सहूलियत से ओपन या क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से हमें ये हीटिंग करनी है और को बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। कभी हम डोर्स ओपन करके हीट कर रहे हैं, कभी रिवर्बरेटरी फर्नेस का डोर क्लोज करके हम हीटिंग कर रहे हैं। याद रखिए रिवर्बरेटरी फर्नेस, इसका मीनिंग होता है रिवर्बरेट यानी टू रिफ्लेक्ट, रिवर्बरेट यानी टू रिफ्लेक्ट, यानी रिफ्लेक्टेड फ्लेम से हम हीट कर रहे हैं और पार्टिकल्स को रिफ्लेक्टेड फ्लेम से हीट करवा रहे हैं, जिसकी वजह से अलग अलग इंप्योरिटीज ओर के साथ में जो अटैच है उसे हम निकाल दे रहे हैं। तो ये प्रक्रिया की जाती है रिवर्बरेटरी फर्नेस में। और जो रिवर्बरेटरी फर्नेस मटेरियल जो बना है वो रिफ्रैक्टरी मटेरियल फायर क्ले ब्रिक से बना हुआ रहता है। रिफ्रैक्टरी मटेरियल या हम उसे कहते हैं फायर क्ले ब्रिक्स। क्ले मटेरियल की ऐसी कुछ ब्रिक्स होती है जो कि हाई टेम्परेचर पे विथस्टैंड होती है, हाई टेम्परेचर पे विथस्टैंड होती है विदाउट चेंजिंग इट्स डायमेंशन। मैं क्या कह रहा हूं, जब किसी भी कंटेनर का टेम्परेचर बढ़ते हुए जाता है तो रेगुलर इसमें क्या हो जाता है कि रेगुलर केसेस में क्या हो जाता है कि उस कंटेनर के डायमेंशन चेंज हो जाते हैं और जो गैसेस डेवलप हो जाते हैं वो रिलीज हो जाते हैं। वो ड्रॉबैक निकालने के लिए हम वहां पे रिफ्रैक्टरी मटेरियल और उसे हम कह सकते हैं फायर क्ले ब्रिक्स, उसका उपयोग करते हुए हम कंटेनर बना रहे हैं फायर क्ले ब्रिक्स के रिफ्रैक्टरी मटेरियल। दिस इज द टाइप ऑफ मटेरियल विच कैन विथस्टैंड एट अ हाई टेम्परेचर विदाउट चेंजिंग इट्स डायमेंशन। Refractory material or fire clay bricks, these are the materials or these containers can withstand at a high temperature without changing its dimensions. Dimension change न होते हुए वो high temperature के ऊपर as it is रहता है, उसे हम कहते हैं refractory material या हम कह सकते हैं fire clay bricks। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होने जा रही है वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट रिएक्शन है कैल्सिनेशन प्रोसेस। फर्स्ट रिएक्शन कौन सी है, कैल्सिनेशन प्रोसेस।
the method of heating the ore strongly in deficiency or in absence of air to a temperature below its melting point. देखिए हम क्या कर रहे हैं, कैल्सिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है, ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर हम absence of एयर में ओर पार्टिकल्स को हीट कर रहे हैं. वी आर हीटिंग द ओर स्ट्रांगली इन absence और in deficiency of air टू अ टेम्परेचर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट. यानी ओर के टेम्परेचर के मेल्टिंग पॉइंट के टेम्परेचर जो भी है, ओर का मेल्टिंग पॉइंट जो भी है उसके नीचे तक हम उसे हीट कर रहे हैं, यानी हीट कर रहे हैं इन absence ऑफ एयर. इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, इन absence ऑफ एयर. अब यहाँ पे देखिए इन absence ऑफ एयर यानी क्या है, calcination is done in the hearth of reverberatory furnace when the doors of the furnace are kept closed. When the doors of furnace they are kept closed, यानी doors पूरी तरह बंद है, closed है. That is the purpose, that is the way in which we are adopting this method or process. ये process किस तरह की जा रही है वो मैंने बताया. अब इसके पर्पस क्या है, पर्पस क्यों कर रहे हैं हम कैल्सिनेशन. फर्स्ट पर्पस टू कन्वर्ट कार्बोनेट ओर इनटू हाइड्रोक्साइड ओर एंड टू कन्वर्ट कार्बोनेट ओर इनटू ऑक्साइड ओर और हाइड्रोक्साइड ओर इनटू ऑक्साइड ओर. दोनों ओर का कन्वर्जन हम ऑक्साइड में करने के लिए कर रहे हैं. स्लिप ऑफ टंग हो गई. देखिए एक बार क्या कह रहा है कि टू कन्वर्ट कार्बोनेट ओर एंड हाइड्रोक्साइड ओर्स इनटू ऑक्साइड. कार्बोनेट ओर का कन्वर्जन ऑक्साइड में करने के लिए या हाइड्रोक्साइड ओर का कन्वर्जन ऑक्साइड में करने के लिए ये मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं, ये मेथड हम परफॉर्म कर रहे हैं. तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जिसे हम लाइम भी कहते हैं उसका कन्वर्जन हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड में. यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो भी लाइम के अंदर था, कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर था, वो रिलीज हो गया. कब रिलीज हो गया, जब हम उसे हीट करवा रहे हैं रिवर्बरेटरी फर्नेस के अंदर. रिवर्बरेटरी फर्नेस के अंदर उसको हीट करवाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया. कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया यानी निकल गया, यानी इंप्यूरिटी डिटैच हो गई, इंप्यूरिटी निकल गई, यानी ही उस कार्बोनेट ओर का कॉन्सेंट्रेशन हम कर रहे हैं केमिकल मेथड से. केमिकल मेथड यानी हीट कर रहे हैं बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट. उस दौरान जो भी ट्रैप्ड गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड जैसा ये गैस यहाँ रिलीज हो रहा है, यानी लाइम में से कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, कैल्शियम ऑक्साइड बच गया, यानी मेटल कॉन्सेंट्रेट हो रहा है. दूसरा एग्जांपल मैलेचाइट. मैलेचाइट में क्या हो रहा है, कॉपर कार्बोनेट कॉपर हाइड्रोक्साइड. मैलेचाइट में देखिए कॉपर कार्बोनेट कॉपर हाइड्रोक्साइड की ओर है और उसमें हीट देने के बाद बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, उसका कन्वर्जन कार्बन डाइऑक्साइड में हो रहा है. अब कार्बन डाइऑक्साइड में हो रहा है तो उसका कन्वर्जन ऑक्साइड में हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है और वाटर भी निकल जा रहा है. यानी जब हम हीट कर रहे हैं तो वाटर भी निकल जा रहा है, जो ट्रैप्ड गैसेस है वो भी निकल जा रहे हैं. और एक एग्जांपल देखेंगे और एक पर्पस देखेंगे, टू रिमूव द मॉइस्चर. देखिए यहाँ पे हेमेटाइट ओर दिखाई दे रही है हमें, हाइड्रेटेड हेमेटाइट ओर दिखाई दे रही है और उसका टेम्परेचर हम बढ़ाते हुए जब हम उसे हीट करेंगे तो ऑब्वियसली उसके अंदर जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स है वो डिटैच हो जाएंगे, वो रिमूव हो जाएंगे, वो निकल जाएंगे, वेपराइज्ड हो जाएंगे और हमें वाटर फ्री यानी जिसके अंदर मॉइस्चर है वो मॉइस्चर निकलने के बाद और पार्टिकल्स मिल जाएंगे, और पार्टिकल्स मिल जाएंगे. टू रिमूव द इम्प्यूरिटीज to make mass porous we are adopting this process. यानी जो भी कैल्सिनेशन के पर्पसेस है वो आपके सामने है. फिर एक बार रिवाइज करेंगे. टू कन्वर्ट कार्बोनेट ओर इनटू ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जांपल देख सकते हैं. टू कन्वर्ट हाइड्रोक्साइड इनटू ऑक्साइड देख सकते हैं, कॉपर हाइड्रोक्साइड है, कॉपर कार्बोनेट है, उसका कन्वर्जन कॉपर ऑक्साइड के अंदर करने के लिए हम ये प्रोसेस अडॉप्ट कर रहे हैं. टू रिमूव द मॉइस्चर
जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स है निकालने के लिए हम उसे हीट कर रहे हैं, टू रिमूव द इम्प्यूरिटीज टू मेक मास पोरस। अब वाटर निकलने के बाद उस और पार्टिकल की हम परिस्थिति अगर देखते हैं तो वो पोरस हो जाएगी, यानी उसके अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं है, वो हल्की भी हो रही है, हल्की भी हो जाएंगी क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट्स निकल जा रहे हैं, और इम्प्यूरिटीज यानी कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ट्रैप्ड गैसेस भी निकल जा रहे हैं इस कैल्सिनेशन प्रोसेस के दौरान। कैल्सिनेशन मींस व्हाट वी आर डूइंग, वी आर हीटिंग द ओर इन absence of air insufficient to melt it or below its melting point। हम उस ओर को मेल्टिंग पॉइंट के बिलो टेम्परेचर तक हीट कर रहे हैं, टू कन्वर्ट कार्बोनेट ओर इनटू ऑक्साइड ओर, टू कन्वर्ट हाइड्रोक्साइड ओर इनटू ऑक्साइड ओर, टू रिमूव द मॉइस्चर, टू मेक मास पोरस, टू रिमूव द इम्प्यूरिटीज। वी आर अडॉप्टिंग दिस प्रोसेस, दिस मेथोडोलॉजी। सेकंड प्रोसेस है रोस्टिंग। हम ज्यादातर रोस्टेड ब्रेड, ये वर्ड हमें मालूम है। तो रोस्टेड ब्रेड यानी क्या रहता है, तो ब्रेड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम उसे हीट करते हैं, तो उसका टोस्ट में कन्वर्जन हो जाता है। रोस्टिंग करने के बाद उसका टोस्ट में कन्वर्जन हो गया तो वो हम टोस्ट करके खाते हैं। तो उसी तरह ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ओर को हीट करना यानी रोस्टिंग। वी आर रोस्टिंग यानी क्या है, वी आर हीटिंग द ओर इन प्रेजेंस or in excess of air insufficient to melt it or below the melting point of ore, we can call it as a roasting process. This method is generally used in case of sulfide ores। देखिए यहां ध्यान देना है हमें, ये प्रोसेस कौन सी ओर के ऊपर एडॉप्ट हो रही है, तो सल्फाइड ओर के ऊपर हो रही है। The main purpose of roasting are to convert sulfide ore into oxide ore और सल्फाइड ओर इंटू सल्फेट। यानी सल्फाइड ओर का कन्वर्जन ऑक्साइड में करने के लिए, सल्फाइड ओर का कन्वर्जन सल्फेट में करने के लिए ये प्रोसेस हम अडॉप्ट कर रहे हैं। वी आर अडॉप्टिंग दिस मेथड, this process to convert sulfide ore into oxide ore, to convert sulfide ore into sulfate, this method is adopted। ZnS का कन्वर्जन ZnO में हो गया और वहां पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस एस्केप हो गया, रिलीज हो गया। देखिए यहाँ पे हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, तो सल्फाइड ओर का कन्वर्जन क्या हो रहा है, ऑक्साइड में हो जा रहा है, और सल्फाइड ओर का कन्वर्जन सल्फेट में भी हो रहा है। देखिए नीचे वाली रिएक्शन हम देख सकते हैं आसानी से। जिंक सल्फाइड जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है तो जिंक सल्फेट बन रहा है, और इसी के लिए हम इसे हीट कर रहे हैं। नेक्स्ट उसका पर्पस है टू रिमूव द मॉइस्चर। उसके आगे वाला पर्पस है टू रिमूव द होलाटाइल इंप्यूरिटीज लाइक सल्फर, आर्सेनिक, एंटीमनी, फॉस्फोरस इन द फॉर्म ऑफ देयर ऑक्साइड्स। टू रिमूव होलाटाइल इंप्यूरिटीज लाइक सल्फर, आर्सेनिक, एंटीमनी, फॉस्फोरस इन द फॉर्म ऑफ देयर ऑक्साइड। यानी सल्फर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने के बाद सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, आर्सेनिक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने के बाद आर्सेनिक ऑक्साइड बन गया, फॉस्फोरस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने के बाद फॉस्फोरस ऑक्साइड, या हम कह सकते हैं फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड बन गया। It is difficult to reduce sulfide ore to metal and hence it's converted into its oxide before reduction। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत ऐसी थी कि सल्फाइड ओर आसानी से मेटल में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होती, वो डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं हो रही है, उसकी वजह से हम उसे एक सुटेबल फॉर्म में, कंडीशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखिए हालांकि क्या होता आता है, कभी कभी हमें कौन सा काम घर पे भी निकाल लेना है पिताजी से, पिताजी अगर गुस्से वाले हैं तो
आसानी से मानते नहीं। तो हम क्या करते हैं, एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट बनाने के लिए हमारे मम्मी जी के पास, माता जी के पास पहले कन्वे करते हैं मैसेज, और माता जी सुटेबल इन्वायरमेंट बनाती है। यानी जो काम आप पिताजी से करवा नहीं सकते डायरेक्टली, तो कंफर्टेबल इन्वायरमेंट, कंफर्टेबल कंडीशन जैसे बनाते हुए कौन सा भी काम कंप्लीट करते हो, उसी तरह यहाँ पे मेटल, हमें फाइनली मेटल एक्सट्रैक्ट करना है। तो सल्फाइड में से हम ऑक्साइड की तरफ क्यों जा रहे हैं, बजाय सल्फाइड से डायरेक्ट मेटल क्यों एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहे? उसकी वजह यह है, सल्फाइड से डायरेक्टली मेटल एक्सट्रैक्ट नहीं हो सकता। सल्फाइड और मेटल अलग अलग नहीं हो सकते। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, सल्फाइड का कन्वर्जन एक सुटेबल इन्वायरमेंट में, सुटेबल कंपाउंड में कर रहे हैं, सुटेबल कंडीशन में कर रहे हैं, जिसे हम ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। यानी सल्फाइड का कन्वर्जन ऑक्साइड में हो जाएगा, या सल्फाइड का कन्वर्जन सल्फेट में हो जाएगा, और उसके बाद में हम आसानी से उससे मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट सल्फाइड से मेटल एक्सट्रैक्ट करना पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हम उसे सुटेबल कंडीशन में, सुटेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, एंड हेंस सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड एंड सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू सल्फेट। उसके बाद में ये दोनों जो मेथड्स है, ये दोनों मेथड्स, पहली मेथड हो गई कैल्सिनेशन और दूसरी मेथड हो गई रोस्टिंग, ये दोनों मेथड्स हम रिवर्बरेटरी फर्नेस में परफॉर्म कर रहे हैं। एक बार कैल्सिनेशन में डोर्स, रिवर्बरेटरी फर्नेस के डोर्स क्लोज कंडीशन में है, और रोस्टिंग में रिवर्बरेटरी फर्नेस के डोर ओपन है। इन ऑक्सीजन सप्लाई में जब हम उसे हीट कर रहे हैं और पार्टिकल्स को बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, देन this process it is called as roasting. When we are heating the ore in absence or in deficiency of air, it is called as calcination. But in both cases we are heating the ore below its melting point. दोनों केसेस में हम ore particles को हीट कर रहे हैं below its melting point. Calcination के purposes ऐसे है, to convert carbonate ore into oxide ore, to convert hydroxide ore into oxide ore, to remove the moisture, to make mass porous. We are adopting this method. These are the purposes of calcination. While roasting, the purposes of roasting is to convert sulfide ore into oxide ore, is to convert sulfide ore into sulfate, to remove the moisture, to make mass porous, to remove the volatile impurities like arsenic, antimony, bismuth, sulfur, phosphorus, and such impurities are removed by just heating in excess of air, and hence this method it is adopted in presence of air. In that case, the doors of reverberatory furnace, they are open. The next process, it is called as reduction. Before addition of ore, in reduction process, ore is passed through different methods, that is physically and chemically. In chemical methods, ore is heated below its melting point. Reduction is carried out with the help of three different methods. First one, carbon reduction method called as smelting. Second one, aluminothermic process. And third one, electrolysis. Out of which we are having carbon reduction method in our curriculum called as the smelting process. Smelting, it is nothing but melting of ore. देखिए वहां पे मैंने यस स्ट्राइक आउट किया है, मिटा देने की उसमें उसके कैरेक्टर में से बीच में से लाइन खींची है, उसे स्ट्राइक आउट करना कहते हैं। तो स्मेल्टिंग इट इज नथिंग बट द मेल्टिंग ऑफ ओर, यानी इस मेल्टिंग में, यानी रिडक्शन मेथड में हम ओर को मोल्टन स्टेट में ले जा रहे हैं, उस ओवर पार्टिकल्स को मोल्टन स्टेट में ले जा रहे हैं। तो इसे कह रहे हैं स्मेल्टिंग, नथिंग बट carbon reduction method. As we are calling it as a carbon reduction method, nothing but carbon, it is used as a reducing agent. In this case,
कार्बन इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे हम कार्बन को रिड्यूसिंग एजेंट कह के यूज कर रहे हैं, उसका यूज रिड्यूसिंग एजेंट बोल के कर रहे हैं। In this process is adopted in case of the metals whose atomic weights are higher than that of manganese। यानी जिसका एटॉमिक वेट मैंगनीज की वेट से ज्यादा है, यानी कौन से? आयरन है, आयरन ऑक्साइड है, कोबाल्ट ऑक्साइड है, निकेल ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है। These oxides can be reduced by this process। यानी जिनके अंदर, जिन मेटल के अंदर जिनका एटॉमिक वेट मैंगनीज की वेट से ज्यादा है, ऐसे मेटल्स यहाँ पे रिड्यूस हो सकते हैं, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो दिस मेथड इट इज एडॉप्टेड इन द ब्लास्ट फर्नेस मेल्टिंग प्रोसेस, इट इज एडॉप्टेड इन द ब्लास्ट फर्नेस। And we are having this diagram of blast furnace. We can easily see the arrangement, construction of this blast furnace. Reduction process is carried out in blast furnace, which is cylindrically about 20 to 30 meters high and about 4 to 8 meters wide at the broadest part। जो broadest part है वहां पे 4 से 8 मीटर इतना वाइड है, और 20 से 30 मीटर यानी कम से कम 90 फीट, 60 से 90 फीट इसकी हाइट है ये ब्लास्ट फर्नेस की, जहां पे हम मेटेलिक पार्ट एक्सट्रैक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी मेटल ऑक्साइड है वो रिड्यूस करने के लिए इस ब्लास्ट फर्नेस का यूज कर रहे हैं। ये प्रोसेस आ रही है स्मेल्टिंग प्रोसेस के अंदर, ब्लास्ट फर्नेस का कंस्ट्रक्शन हम देख रहे हैं। ब्लास्ट फर्नेस इज मेड अप ऑफ फायर क्ले रिफ्रैक्टरी एंड आउटर प्लेट्स आर मेड अप ऑफ स्टील प्लेट्स। देखिए जैसे रिवर्बरेटरी फर्नेस था, उसी तरह उसी प्रकार ये ब्लास्ट फर्नेस की अरेंजमेंट है। फायर क्ले रिफ्रैक्टरी और स्टील प्लेट्स की मदद से यहाँ पे दो लेयर की मदद से वहां पे ब्लास्ट फर्नेस के वॉल्स डेवलप हो गए हैं। जो भी डेवलपमेंट है फायर क्ले रिफ्रैक्टरी, यानी वही जब हम हायर टेम्परेचर के ऊपर किसी भी कंटेनर को ले जाते हैं, वो हायर टेम्परेचर पे विदाउट चेंजिंग डायमेंशंस हमें अगर एक्सपेक्टेड है तो हमें फायर क्ले रिफ्रैक्टरी की हेल्प लेनी पड़ेगी, बिकॉज दिस रिफ्रैक्टरी मटेरियल these are having some special properties which can withstand at a high temperature without changing in its dimension। वो without changing dimension पे हाई टेम्परेचर पे वो एज इट इज रहते हैं विदाउट चेंजिंग डायमेंशन। उसकी वजह से जो भी गैसेस प्रोड्यूस हो जाते हैं वो एस्केप नहीं हो जा सकते हैं, वो कंटेनर के अंदर ट्रैप्ड रहते हैं टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। आगे देखेंगे, the upper part of furnace is known as a throat, middle part is known as body, and just below it it is called as bosh, and lower portion of furnace is called as hearth। lower furnace of lower part of this furnace it is called as bosh, and below bosh it is called as hearth। Nearly about 3 meter above the base of furnace, यानी जो hearth है वो बेस से 3 मीटर अबव है। There is series of tubes called as toyers through which blast of preheated air it is inserted। The temperature of that preheated air it is nearly about 800 degrees Celsius। It is inserted inside the funnel। यानी हम प्री हीटेड एयर इंसर्ट कर रहे हैं इस टॉयर्स की मदद से। जो पाइप्स हमें दिखाई दे रहे हैं हर्थ के ऊपर, बोश के नीचे, वो हॉट एयर ब्लास्ट इंसर्ट कर रहे हैं। क्यों इंसर्ट कर रहे हैं? उस फर्नेस का, उस ब्लास्ट फर्नेस का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हम उस टॉयर से यानी पाइप से हॉट एयर ब्लास्ट कर रहे हैं। In charge we are adding charge from the top portion of this blast furnace which contains ore plus carbon powder
and flux in the form of, देखिए यहाँ पे जो कार्बन पाउडर हम ऐड कर रहे हैं, इट इज एडेड इन द फॉर्म ऑफ कोक, यानी कोयला, कोयले की पाउडर हम ऐड कर रहे हैं, विच इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। एंड उसके बाद में फ्लक्स भी ऐड कर रहे हैं, विच रिमूव्स इंप्यूरिटीज प्रेजेंट अलोंग विद द मेटल। देखिए चार्ज जो बताया है, चार्ज के अंदर और पार्टिकल्स है, कोक है और फ्लक्स है, जो कि टॉपर पोर्शन में से हम इंसर्ट कर रहे हैं। चार्ज यानी और पार्टिकल्स को रिड्यूस करने के लिए और पार्टिकल के साथ में एक मटेरियल ऐड कर रहे हैं, उसको हम फ्लक्स कहते हैं। और फ्लक्स के साथ में कोक भी ऐड कर रहे हैं, यानी कार्बन की पाउडर भी ऐड कर रहे हैं। किसी का माइक चालू है, प्लीज बंद कर दीजिए। तो ये फ्लक्स क्या करेगा, जो भी मेटल के साथ में इंप्यूरिटी है, वो इंप्यूरिटी रिमूव करने के लिए हम फ्लक्स के एडिशन कर रहे हैं। और कार्बन पाउडर जो है, मेटल ऑक्साइड का कन्वर्जन मेटल में करने के लिए कार्बन पाउडर की एडिशन हो रही है। द पोर्शन ऑफ और कोक एंड फ्लक्स, द proportion of और कोक एंड फ्लक्स इज ऑफ 8:4:1, यानी इस प्रपोर्शन में हमें ऐड करना है। अगर और पाउडर 8 ग्राम हमने ले ली, तो 4 ग्राम कोक लेना है और 1 ग्राम फ्लक्स लेना है। इस प्रपोर्शन में हमें ऐड करना है। यानी अगर हम 800 किलो और लेते हैं, तो 400 किलो कोक लेंगे और 100 किलो फ्लक्स लेंगे। इस प्रकार से हमें वो ऐड करना है। क्योंकि ये कंटेनर बहुत बड़ा है, तो ग्राम में हम थिंकिंग न करते हुए क्विंटल में करना आसान होगा, क्योंकि उस तरह से हमें यहाँ पे एडिशन करनी है। ग्रेजुअली टेम्परेचर गोज ऑन इंक्रीजिंग टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द फर्नेस। देखिए टॉप से बॉटम की तरफ ग्रेजुअली टेम्परेचर इंक्रीज होते हुए जा रहा है। टॉप टू बॉटम में टेम्परेचर क्या होते हुए जा रहा है, इंक्रीज होते हुए जा रहा है। बोश की तरफ 1200 डिग्री सेल्सियस दिखाई दे रहा है और थ्रोट की नजदीक 300 डिग्री सेल्सियस वहां पे दिखाई दे रहा है। और उसके बाद में हम देख सकते हैं, इन द वेल ऑफ दिस फर्नेस देयर आर 2 आउटलेट्स नोन एज टैप होल्स। उस टायर्स के नीचे 2 टैप होल्स हमें दिखाई दे रहे हैं, यानी आउटलेट्स दिखाई दे रहे हैं। द अपर टैप होल, इट इज यूज्ड टू रिमूव द स्लैग एंड द लोअर वन इज यूज्ड टू रिमूव द मोल्टन मेटल। तो हमें देखना ये इंटरेस्टेड है कि इंटरेस्ट ला देता है कि और को निकालने के लिए या मोल्टन मेटल को निकालने के लिए 2 टैप होल्स वहां पे उन्होंने दिए हैं, अपर टैप होल और लोअर टैप होल। अपर टैप होल से स्लैग निकाल सकते हैं और लोअर टैप होल से मोल्टन मेटल हम निकाल देते हैं, आसानी से निकल जाता है। ठीक है, तो ये जो टेम्परेचर रेंज यहाँ पे दी गई है 300 से 800 डिग्री सेल्सियस, उस टेम्परेचर रेंज में हम उस एरिया में जो टेम्परेचर है 300 से 800, उस जोन को, उस टेम्परेचर रेंज को कहते हैं जोन ऑफ रिडक्शन। उसे और एक नाम दिया गया है, डल रेड हीट जोन, डल रेड हीट जोन या जोन ऑफ रिडक्शन। ये टेम्परेचर रेंज है 300 से 800 डिग्री सेल्सियस। इन 300 डिग्री सेल्सियस टू 500 डिग्री सेल्सियस, Fe2O3 ferric oxide, or we can say that hematite ore, when combined with carbon monoxide, there is a formation of ferroso-ferric oxide, which is also known as magnetite, which is also called as magnetite, and thus there is evolution of carbon dioxide gas. देखिए यहाँ पे ये देखना होगा, लेफ्ट हैंड साइड में कितने आयरन है। लेफ्ट हैंड साइड में हम देख सकते हैं 3 × 2 6 आयरन है, Fe के आइटम्स है, और ऑक्सीजन के आइटम्स उसके साथ में कितने हैं, 3 × 3 9 ऑक्सीजन के आइटम्स है। यानी 6 आयरन के एटम्स के साथ 9 ऑक्सीजन के एटम्स है। और राइट हैंड साइड में अगर हम देखेंगे तो आयरन के एटम कितने रह गए, 2 × 3 6,
राइट हैंड साइड में भी 6 है, लेकिन उसके साथ में ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं? 4 into 2 यानी 8 एटम्स हो गए। यानी जो एक ऑक्सीजन का एटम था फेरिक ऑक्साइड के अंदर वो कम हो गया है, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, नथिंग बट रिडक्शन रिएक्शन इट इज टेकिंग प्लेस। इसे रिडक्शन क्यों कहा गया है? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन का लॉस हो गया है, ऑक्सीजन का लॉस हो गया है, यानी रिडक्शन हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रहा है। तो ये रिएक्शन है जोन ऑफ रिडक्शन की। यहाँ पे हेमेटाइट और इट इज कन्वर्टेड इनटू मैग्नेटाइट और फेरिक ऑक्साइड गेट कन्वर्टेड इनटू फेरसोफेरिक ऑक्साइड इन बिटवीन 300 डिग्री सेल्सियस टू 500 डिग्री सेल्सियस। 300 ते 500 डिग्री सेल्सियस मध्ये फेरिक ऑक्साइडचं कन्वर्जन फेरसोफेरिक ऑक्साइड मध्ये होत आहे, कार्बन मोनॉक्साइड कंबाईन होत आहे। आपण लेफ्ट हँड साइडला ऑक्सिजनची संख्या आणि राईट हँड साइडला ऑक्सिजनची संख्या जर बघितली तर आयर्न मेटल सोबत ऑक्सिजनची संख्या 1 न कमी झालेली आहे, म्हणजेच आयर्न सोबत असलेल्या ऑक्सिजनची संख्या 1 न कमी झाली आहे, म्हणजेच तिथं रिडक्शन झालेलं आहे। लॉस ऑफ ऑक्सिजन म्हणजे रिडक्शन आहे आणि ह्यामुळेच ह्या प्रोसेसला, ह्या स्टेपला ही रिडक्शन झालेलं आपल्याला दिसून येईल। नेक्स्ट, Fe2O3 is stable in between 500 degrees Celsius to 650 degrees Celsius. Means the formed ferrospheric oxide, it is stable up to 650 degrees Celsius. Hence, there is a no reaction in 50 degrees Celsius. In between 650 to 700 degrees formed ferrospheric oxide, it get converted into iron oxide. It get converted into iron oxide. फेरोसोफेरिक ऑक्साइड वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन हो रहा है, फिर आयरन ऑक्साइड बन रहा है। और इस दौरान भी अगर हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, कितने आयरन के एटम्स है? 3 आयरन के एटम्स है। वो कितने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहे हैं? 4 ऑक्सीजन से कंबाइन हो रहे हैं। राइट हैंड साइड में आयरन के कितने एटम्स है? 3 ऑक्सीजन के आयन के एटम्स है और 3 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहे हैं, यानी 1 ऑक्सीजन कम हो गया, यानी वहां पे रिडक्शन प्रोसेस हो गई, वहां पे रिडक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो गई। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे। इन बिटवीन 700 डिग्री सेल्सियस टू 800 डिग्री सेल्सियस आयरन ऑक्साइड अगेन इट कंबाइंस विथ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड thus it get reduced at reduced to iron in between 700 degrees Celsius to 800 degrees Celsius. At same temperature, flux, suppose limestone is added as a flux, get converted into calcium oxide. हमें ये देखना है, अगर हम लाइमस्टोन ऐड करते हैं तो इसी टेम्परेचर के रेंज में वो लाइमस्टोन कन्वर्ट हो रहा है लाइम में और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। जो भी ट्रैप्ड गैस है कार्बन डाइऑक्साइड का वो 700 से 800 डिग्री सेल्सियस के अंदर रिलीज हो रहा है। इन दिस रिडक्शन प्रोसेस अलोंग विथ द ओर फ्लक्स इज एडेड। जैसे हमने पहले कहा है, इस रिडक्शन प्रोसेस में ओर के साथ में हम फ्लक्स ऐड कर रहे हैं। इन दिस केस कैल्शियम ऑक्साइड अगर बन रहा है तो हमने लाइमस्टोन को ऐड किया है, लाइमस्टोन यानी कैल्शियम कार्बोनेट, और वो रिड्यूस हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर इस प्रोसेस के दौरान इस टेम्परेचर के ऊपर। अब ये फ्लक्स यानी क्या है ये हम देखते हैं। द सब्सटेंस विच इज एडेड टू रिमूव गैंग्वी और मैट्रिक्स और इंप्यूरिटीज एसोसिएटेड विद द मेटल। मेटल के साथ में जो भी इंप्यूरिटीज है वो इंप्यूरिटीज रिमूव करने के लिए हम जो सब्सटेंस ऐड कर रहे हैं उन्हें हम कह सकते हैं फ्लक्स, उन्हें हम कह सकते हैं फ्लक्स। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ गैंग्वी और impurities, flux is added. Depending upon the nature of gangue or matrix or impurities, flux is added. Means they are opposite or complementary to each other. They are opposite or complementary to each other. यानी क्या है देखेंगे। Let us consider iron ore. Let us consider iron ore. Iron ore अगर हम देखते हैं, if iron is associated with silicon oxide as a gangue or matrix or impurity, calcium oxide is added. Calcium oxide is added as a flux.
calcium oxide is added as a flux. याने अगर सिलिकॉन डायऑक्साइड जर तिथे इम्प्युरिटी असेल तर सिलिकॉन डायऑक्साइड जर इम्प्युरिटी असेल तर तिथे आपण फ्लक्स ऍड करत आहोत कॅल्शियम ऑक्साइड. हेन्स व्हेन फ्लक्स कंबाइन्स विथ गँगुई देर इज फॉर्मेशन ऑफ इझिली फ्युजिबल मास कॉल्ड ॲज अ स्लॅग. तिथं बघा ज्यावेळेस सिलिकॉन ऑक्साइड फ्लक्स सोबत म्हणजेच गँगुई इम्प्युरिटी ज्यावेळेस फ्लक्स सोबत ऍड झालं त्यावेळेस तिथं इझिली फ्युजिबल मास कॅल्शियम सिलिकॉन ऑक्साइड म्हणजे स्लॅग ही डेव्हलप होतीये. इझिली फ्युजिबल मास आहे, हलका आहे. पण हे कधी जर गँगुई ही ऍसिडिक नेचरची आहे तर आपण सिलेक्ट कोणाला करत आहोत, बेसिक नेचरच्या फ्लक्सला ऍड करत आहोत. बेसिक नेचरच्या फ्लक्सला ऍड करत आहोत. इफ आयर्न इज असोसिएटेड विथ मॅग्नेशियम ऑक्साइड ॲज अ गँगुई, मॅग्नेशियम ऑक्साइड सारखी गँगुई असेल, इम्प्युरिटी असेल, मॅट्रिक्स असेल तर त्या केसमध्ये आपण काय ऍड करणार, सिलिकॉन डायऑक्साइड. सिलिकॉन डायऑक्साइड हे आपण ऍड करणार ॲज अ फ्लक्स. मीन्स इफ impurities are having basic nature, in that case we have to select the acidic flux. If impurities are having acidic nature, then we have to select the basic flux. Depending upon the nature of gangui, matrix, impurities, flux is added. If gangui is acidic, basic flux are added, and if gangui is basic, acidic flux are used. और लास्ट में एक डेफिनेशन है स्लैग की जो हम देख चुके हैं अभी. When flux combines with gangui, it forms easily fusible mass called as slag. Silicon oxide, when it combines with calcium oxide, there is a formation of slag, easily fusible mass. If iron ore is associated with magnesium oxide, a gangui matrix impurity, MgO as a gangui or matrix or impurity, then there is a formation of magnesium silicon oxide called as slag. Infusible metal oxide of metals and non-metals are converted into fusible mass called as slag. देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फ्यूज होने वाले मेटल्स यहाँ पे बन रहे हैं ऐसा नहीं. इनफ्यूजिबल मेटल ऑक्साइड जो भी है वो कंबाइन हो रहे हैं स्लैग के अंदर. तो आज के लिए हम यहीं पे स्टॉप हो जाते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे वाला पार्ट देखते हैं. तो जोन ऑफ रिडक्शन के अंदर जो भी रिएक्शंस है, स्मेल्टिंग प्रोसेस के अंदर जो भी रिएक्शन है, ब्लास्ट फर्नेस का कंस्ट्रक्शन है, ये रिडक्शन प्रोसेस है, रोस्टिंग प्रोसेस है, कैल्सिनेशन प्रोसेस है, रिवर्बरेटरी फर्नेस का कंस्ट्रक्शन है. इसमें कौन सा भी डाउट है तो आप मुझे ऑनलाइन पूछ सकते हैं और ऑनलाइन मैं आपको कन्वे करूंगा. ठीक है, तो यहीं स्टॉप करते हैं. थैंक यू. आप जो भी सवाल है ऑनलाइन मुझे भेज सकते हो, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो. ठीक है, थैंक यू. Bye, sir. Bye, Thank sir. you. Thank you.